Hello students, wishing you a very good morning. Let's start with business statistics, chapter number 1, Introduction to Statistics. So you will learn about statistics in this chapter. In the introduction part, we have like an educated citizen needs an understanding of basic statistical tools to function in a world that is becoming increasingly dependent on quantitative information. मतलब कि हमें इस इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, आजकल जो सारी चीज़ें हैं वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट हैं. सो एन एजुकेटेड सिटीजन शुड हैव अ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Statistics means numerical description. For most of the people, statistics means only numerical description. In fact, it is generally used to mean numerical facts and figures such as if we want to study about the per capita income, agricultural production, rate of inflation. So there are so many things in which we need statistics. However, as a subject of study, we should know about the principles and the procedures which are used for collection of data, classification of data, summarization and interpretation. The purpose of statistics is to manipulate, summarize and investigate data so that useful decision making information results can be obtained. Like we take an example, every business manager needs a sound background of statistics. For the proper handling of the company, firm, statistics is must. Statistics is a set of decision making technique. It is helpful in decision making in many other things also. Now we talk about the origin of statistics. Origin of statistics. Statistics कहाँ से originate हुआ? So it comes from a Latin word status and a Italian word statistica or a German word statistic. All the three terms means political state. Actually, in the beginning of statistics, जब शुरुआत में इस term का use हुआ, that was used to meet the administrative needs of the state. एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स लाइक अभी हमने पर कैपिटा इनकम की बात की थी, अभी हम लोग रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? फ्रॉम द पॉलिटिकल स्टेट. वन कंसर्निंग पॉपुलेशन सो दैट दे मे कम टू नो ऑफ द नंबर ऑफ यंग मेन्स इन द country. Like we want to know about the young population of the country. So these things, like they all need statistics. It is also known as a science of statecraft or a political arithmetic. So हमने अभी तक क्या समझा कि ज़्यादातर जो क्वांटिटेटिव चीज़ें हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स विच आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इसके अंदर हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ब्रॉडली स्पीकिंग, जो टर्म स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ जनरली यूज इन टू सेंसेस. सिंगुलर सेंस में भी यूज़ होती है और प्लूरल सेंस में भी यूज़ होती है. इन द प्लूरल सेंस, अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ पर यूज़ होती है? लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, इनकम, तो ये सारी चीज़ें हैं दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी फील्ड. इसके अंदर हम जब यूज़ करते हैं दैट इज़ इन द प्लूरल सेंस. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सिंगुलर सेंस, तो सिंगुलर सेंस में द टर्म स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू अ साइंस, एक ऐसी साइंस विच डील्स विद द टेक्निक्स और मैथड्स. जो क्या है? टेक्निक्स और मैथड्स से डील करती है विच आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा. सो हमारे पास ये दो चीज़ों में यूज़ होती है ब्रॉडली. वी कैन यूज़ इट इन प्लूरल सेंस, वी कैन यूज़ इट इन सिंगुलर सेंस. तो आपको दोनों में डिफरेंस अंडरस्टैंड हो गया होगा. जब हम इसकी प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो हम इसको वी रिलेटेड टू अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी. हम कहाँ पर इससे डाटा रिलेट कर रहे हैं? हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं.
prizes. So these all collectively forms when the statistics we call it is used in a plural sense. Now also we have the term statistics refers to the data themselves. तो statistic खुद ही क्या मतलब है, quantitative data, न्यूमेरिकल डाटा. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, दीज ऑल आर अबाउट दिस. नाउ वी हैव डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. डेफिनेशंस जो हमें डिफरेंट स्टैटिशियंस ने दी वो भी हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करी हैं, जैसे डेफिनेशंस इन द प्लूरल सेंस एंड ऑल्सो द डेफिनेशंस इन द सिंगुलर सेंस. नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस एज न्यूमेरिकल डाटा. जैसे अब अगर हम उसको प्लूरल सेंस में लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, लाइक देयर इज अ डेफिनेशन गिवन बाय द बाउलीज, दैट इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्चर ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. तो ये किसने दी, ये बाउलीज की दी हुई डेफिनेशन है विच इज़ फॉर द प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. एंड ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स एंड दे टेक द फॉर्म ऑफ काउंट्स एंड मेजरमेंट्स. इस तरह से जो है दिस इज गिवन बाय वॉलिस एंड रॉबर्ट्स. नाउ ऑल्सो we have a definition that was given by Horace Secrist, that is by statistics हम क्या मानते हैं, we mean aggregate of facts. तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अपने आप में जो एक वैल्यू होती है, अगर हम बोले कि हमारे कॉलेज में 500 बच्चे हैं तो वो अपने आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं है. अ सिंगल वैल्यू इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to a marked extent by multiplicity of causes. जो बहुत सारे causes की वजह से affect होती है, numerically expressed करना बहुत ज़रूरी है, and it is enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner to a predetermined purpose and placed in relation to each other. तो ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर गिवन बाय द डिफरेंट स्टैटिशियंस. नाउ वी हैव फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हैं. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स अपने आप में क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स की कलेक्शन है. नाउ अगर हम एक सिंगल नंबर की बात करें तो मैंने अभी अभी आपको बोला एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाता. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. हम एक सिंगल नंबर से कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. जब भी हम बात करते हैं तो हमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए. लाइकवाइज अगर हम इसकी बात करें, द रेशो ऑफ रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट इज़ अ सिंगल वैल्यू. अगर हमने रेडियस और सर्कमफ्रेंस का रेशो लिया देन इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स. लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हम इस तरह से बात करते हैं कि हमारे कॉलेज में 1000 या 500 स्टूडेंट्स हैं, वी टेक अ नंबर 500, ओके. सो हमारे कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी मैंने बोला दिस इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिकल फिगर, दिस हैज़ नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. इसको हमें आगे और समझाना पड़ेगा. लाइक वी से देयर आर 200 इन आर्ट्स फैकल्टी, देयर आर 100 इन कॉमर्स एंड देयर आर 200 इन साइंस फैकल्टी. लाइक दैट इफ़ वी क्लासीफाई इट देन इट हैज़ सम स्टैटिस्टिकल सेंस. अब हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं आगे. जब हमने थोड़ा सा डाटा को क्लासिफाई किया, इसके बारे में और जाना, दैट देयर आर 3 फैकल्टीज़, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और उसमें कितने कितने बच्चे हैं, फिर हमारा डाटा जो है दैट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट. हम इसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट कुछ कर सकते हैं. नाउ वी हैव द सेकेंड पॉइंट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक हम अपने डाटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते. कुछ क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे क्वालिटेटिव में हम बात करते हैं स्मॉल और बिग. आपने 2 कैटेगरीज बना दी, स्मॉल अलग कर दिया, बिग अलग कर दिया. आपने 100 पीपल पे स्टडी किया, आपने 2 कैटेगरीज बना दी, रिच अलग कर दिया, पुअर अलग कर दिया. दीज आर ऑल्सो नॉट स्टैटिस्टिक्स. आइदर यू मेड इट, either you classify it, but it has no statistical impact because
रिच में आपने जो लोगों को डाला दैट हैज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद दैम। ऐसे ही पुअर कैटेगरी में हमने जिसको डाला उसके साथ भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड नहीं है। जब हम स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं तो जो डाटा है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी दो प्लेयर्स की लाइक द कपिल देव एंड द सुनील गावस्कर, अगर हम बोलते हैं कि जो कपिल देव है वो टॉल है और सुनील गावस्कर जो है वो हाइट में शॉर्ट है, तब तक ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगा जब तक आप टॉल और शॉर्ट की टर्म्स में बात करोगे। लेकिन अगर आप इन दोनों की हाइट को मेंशन कर देते हो दैट कपिल देव इज़ 6 feet 2 inches and that Gavaskar is 5 feet 4 inches, now this has become the statistics because now it has numerical value associated with them। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक आप इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अटैच नहीं करोगे तब तक आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स का रोल प्ले नहीं करेगा। ऑल्सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो स्टैटिस्टिक्स है दैट आर ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय द सिंगल फैक्टर, इट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि 30% जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ किसी भी चीज़ का, ऑफ सम गुड हमने बात की कि 30% प्राइस देयर इज़ अ राइज इन प्राइस। सो वो किस वजह से हो सकता है? देयर आर मैनी कॉजेज। देयर इज़ मे बी रिडक्शन ऑफ सप्लाई, देयर मे बी इंक्रीज इन डिमांड, देयर मे बी शॉर्टेज ऑफ पावर, देयर मे बी राइज इन वेजेस, मतलब जो लेबर हैं उनके वेजेस बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ाना पड़ा गुड्स का, सप्लाई कम हो गई इसलिए बढ़ाना पड़ा, डिमांड बढ़ गई इसलिए बढ़ाना पड़ा, सो टैक्सेस बढ़ गए इसलिए बढ़ाना पड़ा। सो देयर आर सो मेनी कॉजेज रिलेटेड टू इट। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो ये हमारा स्टैटिस्टिकल फिगर है जिस पे हम काम करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ऑल्सो देयर इज़ रीजनेबल एक्यूरेसी। A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data। जब भी हम statistical data की बात करते हैं तो हमें कोई accuracy भी अपने माइंड में लेके रखनी चाहिए। अगर हमारा डाटा में हम accuracy पे ध्यान नहीं देंगे तो उसके अंदर फिर जो डिटेल्स मिलेंगी वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल difference of 1 kg of weight and 5 kg of sweet meat is a height of accuracy, but if against the weight of 1 quintal of wheat there is a difference of 1 kg of wheat, the inaccuracy will be treated as negligence। means अगर आप 1000 किलो पे 1 किलो की इनएक्यूरेसी की बात कर रहे हो तो वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप वही काम 5 किलो पे 1 किलो की इनएक्यूरेसी या एक्यूरेसी की बात कर रहे हो तो उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पर हम इसको एक्यूरेसी लेवल पे नहीं ले सकते। तो जो एक्यूरेसी लेनी होती है उसके अंदर हम बहुत मार्जिनल डिफरेंस तो ले सकते हैं पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं ले सकते। देन वी हैव प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो इस पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? सच न्यूमेरिकल अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जब तक आप उनकी कोई इक्वालिटी ऑफ कंपैरिजन नहीं लगाओगे तब तक वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आते। अगर आप जैसे अब दो लोगों की बात कर रहे हो, देयर इज़ वन पर्सन राम एंड देयर इज़ अनदर पर्सन श्याम। आप राम के लिए तो बोल रहे हो कि राम इज़ 40 years old, उधर तो आपने एज की बात कर दी, और श्याम के लिए आपने कह दिया 5 feet टॉल, उसकी आपने हाइट की बात कर दी। अब एज और हाइट का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, या तो आप दोनों की एज लोगे या फिर आप दोनों की हाइट लोगे तभी आप कुछ काम कर सकते हो। अब एक की हमने एज ले ली, एक की हमने हाइट ले ली, लाइक अगर हम एक तीसरा और ले रहे हैं सोहन और उसके लिए हम वेट की बात कर रहे हैं तो तीनों फैक्टर्स डिफरेंट हो गए, एज, हाइट, वेट। सो दिस विल नॉट मेक एनी स्टैटिस्टिक्स। तो जब अभी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमें हर एक के लिए एक ही फैक्टर लेना चाहिए। लाइक अगर हम राम, श्याम और सोहन की बात कर रहे हैं तो या तो हम तीनों की हाइट लेंगे या हम तीनों की एज लेंगे या हम तीनों का वेट लेंगे, तब हम इसके ऊपर फर्दर कुछ स्टैटिस्टिकल काम कर सकते हैं। नाउ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। प्री डिटर्मिन्ड पर्पस के लिए हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव।
स्टैटिस्टिक्स को हमें कोई पहले से ही डिसाइड किया हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर हम लोग पहले से डिसाइड नहीं करेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में काम करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अब आप अगर इसमें करते हो, इफ़ द डाटा पर्टेनिंग टू द फार्मर ऑफ अ विलेज आर बीइंग कलेक्टेड, अगर हम फार्मर किसी विलेज के फार्मर्स के रिगार्डिंग कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, देयर मस्ट बी अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। आपको पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड होना चाहिए। इट मे बी नोन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग दैम, तभी आप उन पे कुछ काम ठीक से कर पाओगे। Then we have enumerated or estimated. Statistics may be collected by enumeration or these may be estimated because अभी हमने बात किया कि एक्यूरेसी जो है उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देने के लिए हमें थोड़ा बहुत एस्टिमेशन और एन्यूमरेटेड भी करना पड़ता है, बिकॉज जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं दैट इज़ नॉट सो मच एक्यूरेट, और वो तो हमें थोड़ा सा उसके अंदर एस्टिमेशन भी लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली। मान लो कि आपके पास दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई, उसमें 1 लाख लोग आए, एंड 2 लाख इन बॉम्बे, और बॉम्बे में 2 लाख आए। दीज स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। अब ये थोड़ी है कि कंप्लीट 1 लाख ही दिल्ली में आए थे और पूरा 2 लाख ही मुंबई में आए थे। देवर अराउंड 1 लाख, थोड़ा सा कम या ज़्यादा। तो हम एक मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, जिसको हम एक स्टैंडर्डाइज राउंड ऑफ फिगर ले लेते हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डाटा लेंगे तो उन डिजिट्स को याद करना भी मुश्किल हो जाता है, उन पे काम करना भी। तो इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें एस्टिमेशन भी चलता है। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट ये भी बनता है दैट द स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड। देन वी हैव कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स शुड हैव बीन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। उसको ऐसे रैंडमली कलेक्ट नहीं करना चाहिए। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं सो दैट शुड बी कलेक्टेड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसे कोई कंक्लूजन हमें नहीं निकालनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक डाटा रिगार्डिंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स कलेक्टेड इन अ हैप्पैज़र्ड मैनर। मतलब आपने जल्दबाजी में उनका डाटा लिया, जो बच्चों के नंबर आए थे, आपने कोई रेफरेंस नहीं लिया क्लास का, सब्जेक्ट का, एग्जामिनेशन, तो वो आपको गलत कंक्लूजन ही देगा और कोई मीनिंगफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सो इन शॉर्ट वी कैन से द न्यूमेरिकल डेटा इन द एब्सेंस ऑफ अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी 8 पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हम जो काम करेंगे दैट वुड नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स पे काम करने के लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। After that we have definition of statistics in singular sense or statistics as a subject. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि statistics की जो definition है in a singular sense. In singular sense statistics क्या है? This is a science, or we can call it as a statistical methods. It refers to the study of techniques. इसके अंदर techniques आती हैं relating to the, जिसके अंदर हम collection of data, classification of data, presentation of data, analysis of data, interpretation of data, इस सब पे बात करते हैं. Like Dr. Bowles has given the following 3 definitions for the singular sense also. Number 1, statistics is the science of counting. स्टैटिस्टिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स इज़ द ओनली अ साइंस ऑफ काउंटिंग, बट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। सो इसके लिए हमारे पास 2 रीजंस हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, वो बल्कि इसके आगे भी कुछ काम करती है, प्रेजेंटेशन पे भी काम करती है। तो इसलिए हमारे पास आगे है टैबुलेशन पे भी काम करती है, एनालिसिस पे भी काम करती है, इंटरप्रिटेशन पे भी काम करती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में सफिशिएंट या कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसके आगे हमारे पास और आया स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एवरेज। स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हम साइंस ऑफ एवरेज भी कह सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, क्योंकि
जो अब ये है इसने सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस किया दैट इट इज़ अ साइंस ऑफ एवरेज। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम खाली एवरेज नहीं निकालते, हम उससे आगे भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करते हैं नंबर्स का, उनको समझने के लिए, उनसे और रिजल्ट्स निकालने के लिए। तो इसीलिए ये वाली डेफिनेशन भी इसके स्कोप को लिमिट करती है। तो हम इसलिए इससे आगे क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिजम्स regarded as a whole in all its manifestations. This is another incomplete definition of statistics. Two reasons lead to the above conclusion. कौन सी हैं वो? That definition limit the application of statistical methods to man's social activity. तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आ गया कि इसने ऐसा बोला कि जो साइंस है वो एक मेजरमेंट है सोशल ऑर्गेनिज्म दैट इज़ रिगार्डेड एज अ होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, जबकि इसका इससे कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। सो स्टैटिस्टिक्स आगे जो और स्टैटिशियंस ने दी वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। एक्चुअली हम इसको सबसे ठीक मानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में यही सारा काम होता है। जब हम एक स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं तो उसके अंदर भी हम इसी तरह के स्टेप्स लेते हैं। पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं और लास्ट में हम उससे रिगार्डिंग कोई इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ करते हैं। So we have this definition. After that we have the features of statistics as a science or statistical methods. So अभी जो हमने पढ़ा उसी के रिगार्डिंग हम करेंगे। According to the above definition of statistics as a science, it is clear that there are 5 stages. अब 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर हमने अभी 4 ही ली थी, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लेकिन हम इसके अंदर एक और जोड़ेंगे और उसको समझेंगे। सो वी हैव द नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा कंसर्निंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ डाटा। This is the first step in statistical method. Depending upon the problem under study, it is decided how, when, where and what kind of data is to be collected. इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। how, कब हमने डाटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कहाँ से करना है। तो पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमने कोई सर्वे करना है या कोई स्टडी करनी है तो जो उसके अंदर डाटा कलेक्शन स्टेप है तो उसके अंदर हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब आपने डाटा को इकट्ठा तो कर लिया, अब उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज जब हमने उसको इकट्ठा किया तो वो एक रॉ फॉर्म में है, तो रॉ फॉर्म से उसको थोड़ा सा फाइनल टच देने के लिए हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। एक जैसा एक डाटा के ग्रुप बनाएंगे, उसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लाएंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज़ द सेकंड स्टेप विद अ व्यू टू रेंडरिंग द कलेक्टेड डाटा मोर कंपेरेबल एंड सिंपल। उसको कंपेरेबल और सिंपल बनाने के लिए हम उसको टाइम के बेस पे भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज प्लेस के बेस पे कर सकते हैं, क्वालिटी के बेस पे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को बेस बना के अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन वी हैव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू मेक द डाटा इंटेलिजिबल, मतलब उसको थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए, आसानी से समझ में आने वाला बनाने के लिए हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसको थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव एनालिसिस ऑफ डाटा। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप, द एनालिसिस ऑफ डाटा। कंक्लूजन्स निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डाटा को एनालाइज करना। There are different method of analyzing the data like measure of central tendencies, measure of variations and correlations etc. Then we have interpretation of data. अब इसके अंदर हमने अपने डाटा के बहुत सारे स्टेप्स कंप्लीट कर ली हैं, कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब उसके अंदर से कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगी। सो अंडर दिस स्टेप्स कंक्लूजन्स आर ड्रॉन आफ्टर एनालाइजिंग डाटा। 2 or more kinds of data are compared. जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया उसको हम फिर कंपेयर करेंगे और
इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड दैम। ताकि हम इसको इतना रीडेबल बना देंगे कि ताकि जिसको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, अगर वो भी इसको पढ़ना चाहे तो वो भी इसको आसानी से समझ ले। इसके आगे हमारे पास है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स मे बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग पार्ट्स। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास है स्कोप, नेचर, सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेशंस। तो इसके अंदर हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? इज़ टू फाइंड आउट, सबसे पहले तो यही पता करना कि ये साइंस है या आर्ट्स है। आप स्टैटिस्टिक्स को क्या समझोगे? हम इसको साइंस भी बोल रहे हैं और इसका यूज़ आर्ट्स में भी हो रहा है। तो एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट स्टडीज़ द न्यूमेरिकल डेटा। बिकॉज यूजुअली आपने देखा साइंस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? न्यूमेरिकल डेटा स्टडी करते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और ये आर्ट्स कैसे है? बिकॉज इट मेक्स यूज़ ऑफ द डेटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये डाटा का यूज़ करके प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ को सॉल्व करती है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, या कोई कंपनी अपने स्टैटिस्टिक्स को समझ सकती है कि हमें फ्यूचर में कैसी प्रोडक्शन करनी चाहिए। मार्केट की स्टडी कर सकती है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है, कौन सी चीज़ डिमांड में है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो it is based on also the real life experiences. So some scholar call it as a study of statistical method. कुछ लोगों ने इसको study of statistical method भी बोला है। और अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है टिपेट। टिपेट ने क्या बोला है? statistics is both a science and an art. ये साइंस भी है क्योंकि ये सिस्टमैटिक तरीके से साइंस की तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और उसकी एप्लीकेशंस भी देती हैं। और ये आर्ट्स भी है क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम है वो रियल लाइफ सिचुएशन और स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टैटिस्टिशियन पे बेस्ड होती हैं कि स्टैटिस्टिशियन का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। देन वी हैव सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे। तो डिस्क्रिप्टिव डाटा को डिस्क्राइब करती है और मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं इसके अंदर जिसकी हेल्प से हम कलेक्शन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन के बाद हम अपने डाटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम इसके अंदर से कोई इन्फरेंसेस नहीं निकालते। जब हम इन्फरेंसेस की बात करेंगे तो देन वी टॉक अबाउट द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आ सकता है, मीन, मीडियन, मोड होता है जो हमारे पास। देन वी हैव डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हैं। तो इसीलिए हम इन सबको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कवर करते हैं। देन वी हैव इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल की अगर हम बात करें तो इन्फरेंशियल डील्स विद मेथड्स विद द विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, जो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एस्टिमेट करने में और कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं इन्फरेंशियल। नाउ देयर आर टू रिलेटिव टर्म्स, देयर वन इज़ द सैम्पल एंड अदर इज़ द पॉपुलेशन। Now when we talk about the complete group then it is a population. अगर हम पूरी population पे स्टडी नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से कुछ पार्ट को ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं और उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। और जिस पार्ट को हम ड्रॉ बाहर निकालते हैं स्टडी करने के लिए उसको हम सैम्पल बोलते हैं। सो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पल आर कॉल्ड द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। और जैसे ही जो भी रिज़ल्ट सैम्पल का निकलता है हम उसके बाद उसको पूरे रिज़ल्ट को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाकर पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देते हैं। सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। तो इन्फरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हमें हेल्प करती है कि हम जो है इसका जो रिज़ल्ट है उसको हम आगे लेके जा सकें और अपनी पूरी पॉपुलेशन पे सारे रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकें। आफ्टर दैट वी हैव फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो द मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर्स। सबसे पहला है
एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि ये फैक्ट्स को क्या करता है, ये नंबर्स में एक्सप्रेस करता है। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग। अगर हम इतना बोलते हैं कि हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसको क्लियर कर देते हो कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो 1950 से 51 वाले ईयर में 245 थी, उसके बाद वो 1995 टू 96 में 9,000 रुपीज़ हो गई। नाउ इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट बिकॉज इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एसोसिएट हो गई हैं। देन वी हैव सिंपल प्रेजेंटेशन। अनदर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ सिंपल फॉर्म। इसका सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करता है ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। फॉर एग्जांपल डाटा कंसर्निंग चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ मेन कमोडिटीज़ बिटवीन 1951 एंड 1995 में बी सो वॉल्यूमिनस एंड कम्बरसम। तो जैसे अगर हम 1950 से लेकर 50 आगे तक की बात करें 1995, तो ये बहुत सारे साल हो गए। अगर हम इसके डाटा को लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा, समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इस डाटा को थोड़ा सा इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। इंडेक्स नंबर यू विल स्टडी इन दिस बुक लेटर ऑन। तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको सिंपल बना देगा और समझने में ईजी कर देगा। देन वी हैव थर्ड पॉइंट, एनलार्जेस इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो स्टैटिस्टिक्स है वो इंडिविजुअल नॉलेज को एनहेंस करती है, इंक्रीज़ करती है, और जो प्रिंसिपल फंक्शन भी इसका यही है। और जैसे अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन टर्म्स को समझने के लिए हम स्टैटिस्टिकल फिगर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम इन टर्म्स को अच्छे से समझ सकें। देन वी हैव इट कंपेयर्स फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द फैक्ट्स। हम इसकी हेल्प से फैक्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। लाइक द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ शुगर इन इंडिया इज़ 8 kg पर एनम। एक एनम की जितनी थी वो थी 8 kg। देन सम पीपल मे कंक्लूड दैट इट इज़ अ वेरी लो रेट ऑफ कंजम्पशन वाइल द अदर मे कंक्लूड दैट इट इज़ वेरी हाई। तो इसको समझने के लिए जब हम ये कहेंगे दैट द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन अदर कंट्रीज़, लाइक खाली इंडिया की बात करेंगे तो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन हम उसके साथ अगर दूसरे कंट्रीज़ का डाटा अटैच कर देते हैं, हम उसके साथ साथ अमेरिका का भी बता देते हैं दैट दिस इज़ 38 kg एंड इन रशिया इट इज़ 46 kg, तो हम कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि इंडिया में जितना कंजम्पशन है उसके कंपैरिजन में अमेरिका में कितना है और रशिया में कितना है। आफ्टर दैट वी हैव इट फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। दिस इज़ अनदर फंक्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल it can help the data in understanding in monetary policies, in fiscal policies of the countries are formulated using the data obtained with the help of statistics। तो statistics की हेल्प से जो डाटा ऑब्टेन होता है उसका कंपैरिजन होता है, रिजल्ट्स ड्रॉ होते हैं, उसके बाद ही कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसीज़ की डेवलपमेंट की जा सकती है। आफ्टर दैट वी हैव Then we have the next points. It helps other sciences in testing their laws. So statistics is also used in other sciences, like we can use it in physics for Kepler's law, law of supply, law of demand. It can also used in economics, like the theory of demand, like law of demand and all. So we use statistics in other sciences also, and also it is helpful in establishing the facts and also the relationship between the facts. Like statistics is also helpful in establishing the relationship between the facts, like tools of correlation in statistics tells the two facts have any relation। जब हम correlation के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो दो फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में किस डिग्री का रिलेशन है। देयर मे बी अ पॉजिटिव रिलेशन, देयर मे बी अ नेगेटिव कोरिलेशन, देयर मे बी अ नो कोरिलेशन। तो ये भी हम आगे कोरिलेशन में पढ़ेंगे। नाउ वी हैव इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग लाइक यू ऑल नो अबाउट सम। फोरकास्ट क्या होता है कि हम जैसे किसी चीज़ को
पहले से ही बताते हैं। लाइक हम लोग वेदर फॉरकास्ट की बात करते हैं, हमारे पास फॉरकास्टिंग फूड प्रोडक्शन में भी हो सकता है। हम कहते हैं कि इस बार हमारे कंट्री का वीट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। हम बात करते हैं कि हमारी जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है बाय 2025 हमारी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। सो वो सब चीज़ें क्या हैं, दैट ऑल आर फॉरकास्ट। और वो सब कैसे होता है, हम अपने पास्ट की वैल्यूज़ को, फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और फिर हम उसको फ्यूचर पे अप्लाई करते हैं, उसको हम फॉरकास्ट लेते हैं। देन वी हैव इट एनेबल्स रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, एनेबल्स रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रॉब्लम, तो वो उसको प्रॉब्लम को मैग्नीट्यूड को समझने में हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बिन इंक्रीजिंग रैपिडली, हमने बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुई। इससे आप लोग कोई बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी या उसकी ग्रेविटी को नहीं समझ पाए। बट अगर हम इसको ऐसे कहते हैं दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1.30 करोड़ एनुअली, कि एक साल में इतनी वैल्यू बढ़ जाती है। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि किस रेट से बढ़ रही है। अब अगर हम दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन लें तो अगर हम ये बोले दैट 1.30 करोड़ एनुअली जो है, दैट इज़ इक्वल टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उसके बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया बन जाता है। दिस इज़ अ फैक्ट, बिकॉज अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ से तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन फिर हमने इसको एक फ़िगर दिया 1.30 करोड़ एनुअली। फिर हमें पता, हमने इसके साथ एक फैक्ट और जोड़ दिया कि जितना इंडिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है उतनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है, तो इसका मतलब इंडिया में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया बनता है। नाउ वी कैन ऑल्सो से प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। नाउ आपके सबसे पहले किया कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आपने किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा के टाइम पे तो हमारा काम था डाटा को इकट्ठा करना, हमें जो डाटा मिला हम इकट्ठा करते गए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर हमने उस डाटा का ग्रुप्स बनाए, हमने उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया। तो जो हमारे को ज़रूरत का डाटा नहीं था लेकिन वो हमारे पास डाटा कलेक्शन में आ गया, हमने उसको छोड़ दिया। थर्ड स्टेप में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लिया। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमने उसको टेबल फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, किसी न किसी डायग्राम फॉर्म में एक्सप्रेस किया। फिर हमारे पास डाटा क्या हुआ, कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया। मीन्स अब वो डाटा हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म में आ गया जिससे हम स्टडी करके कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। और अब वो डाटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, बिखरा हुआ हमारे पास नहीं है, अब हमने उसको एक अच्छी सी कॉन्डेंस्ड फॉर्म दे दी। देन वी हैव यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके बारे में पढ़ने से। नाउ वी टेक द यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस। इन द वर्ड्स ऑफ H.G. वेल्स, ये भी एक स्टैटिस्टियंस हैं, इसने क्या बोला, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग विल बी वन डे एज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट सिटीजनशिप एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जितना लिखना और पढ़ना ज़रूरी है उतनी ही स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज एक सिटीज़न के लिए ज़रूरी है। बिकॉज either a housewife is there, either a businessman is there, either you are doing any profession, हर जगह आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एक हाउसवाइफ अपना डेली का हाउस होल्ड खर्चा चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए वो अपनी मनी को उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करती है, सो दैट शी इज़ ऑल्सो यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो हर चीज़ में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। Now also we have some of the points that will show how important the statistics is. So importance for the administrators or administrations, ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा। Statistics has been in use, ये बहुत टाइम से यूज़ में है एडमिनिस्ट्रेशन में। लाइक
हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो यूज़ करती है डाटा जो रेवेन्यू रिलेटेड हैं और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है आगे का बजट बनाने के लिए। उसी तरह से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अगर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ द न्यू टैक्सेस, कोई नए टैक्सेस लगाते हैं तो वो उसमें भी स्टैटिस्टिकल फिगर्स का यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो दे मेक यूज़ ऑफ मैनी अदर थिंग्स। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है तो वो पुरानी चीज़ों को स्टडी करके बनती है, उसमें चेंज लाने के लिए मतलब लाइक देयर आर सम वर्क ऑन फैमिली प्लानिंग, लाइक देयर इज़ सम वर्क ऑन नेशनलाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। तो सब चीज़ों में स्टैटिस्टिकल फिगर्स का यूज़ होता है। देन आफ्टर दिस वी हैव द सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट। अब इनके लिए स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है, ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू कैन से इन द वर्ड्स ऑफ, अगर हम बडिंगटन की वर्ड्स में बात करें, द सक्सेसफुल बिजनेस मैन इज़ वन। कौन होता है सक्सेसफुल बिजनेस मैन? हु एस्टिमेट मोस्ट क्लोजली अप्रोचेस एक्यूरेसी, जिसके एस्टीमेट्स जो हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक्यूरेसी से, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। तो इसके अंदर हम ये भी बात कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन या एक एग्रीकल्चरिस्ट अगर वो एस्टीमेट कर लेता है डिमांड को, सप्लाई को, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करेगा। और अगर उसकी प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाती है तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। नाउ ऑल्सो वी हैव like if we talk about the farmers and all, statistics have to take decision about the volume of production by anticipating demand on the basis of past data। पुराने डाटा की स्टडी करके हम इस डिमांड, अपनी डिमांड को एंटिसिपेट करके वी कैन अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में अगर ऐसी एनवायरनमेंट कंडीशंस रहती हैं, ऐसे रेनफॉल होता है, अगर सॉइल की ये कंडीशन होती है, मिट्टी ऐसी, पानी ऐसा, तो और एनवायरनमेंट ऐसा, तो हमारी प्रोडक्शन इतनी होएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने कैसे की, जब हमने मल्टीपल फैक्टर्स को माइंड में लिया और पुरानी पास्ट को स्टडी किया। सो दीज आर ऑल स्टैटिस्टिकल फिगर्स। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है। नाउ इम्पॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, statistics is the basis of economics. In other words of Chow, economists depend upon statistics to measure economic aggregate। कौन कौन से होते हैं? such as the gross national output, consumption, saving, investment, expenditure। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट जो है उसको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए। There are also some importance of statistics in economics, like we have the consumption, how a consumer can get maximum satisfaction। एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिल सकती है? प्रोडक्शन, अ प्रोड्यूसर एम्स एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर किसी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए? तो वो किन किन चीज़ों के लिए, कॉस्ट को, रेवेन्यू को, तो एफिशिएंसी ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आते हैं। Then there is exchange. Price of a commodity is determined on the basis of data that is relating to the buyers and sellers and all. Then there is another point we have for economics, it is distribution। डिस्ट्रीब्यूशन के आगे अब हमारे पास नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे रेवेन्यू, इकोनॉमिक प्लानिंग, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट। दीज ऑल्सो आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा। ये सारी चीज़ें भी स्टैटिस्टिकल डाटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जैसे ही हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होता है फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कोई कंक्लूजन्स हमारी निकलती हैं। देन वी हैव इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिशियंस, या फिर पॉलिटिकल फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है? तो फॉर इन द पॉलिटिकल फील्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ इज इम्पॉर्टेंस फॉर द पॉलिटिशियंस ऑल्सो, लाइक इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक ईरा। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक ईरा की बात करें, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट पॉलिटिशियंस बी फुली अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स लाइक द पब्लिक डेट, ब्लैक मनी। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिकल फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक पॉपुलर पॉलिटिशियन
वही हो सकता है हु एडमायर्स और क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। जो स्टैटिस्टिकल डाटा लेके गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को एडमायर करता है या फिर उसके अगेंस्ट बोलता है, तो उसके पास कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए जो उसकी बातों को सपोर्ट करे। Then we have importance for social reformer or in the social field. Statistics is also important for the social reformer because like अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, कोई भी civic प्रॉब्लम हो सकती है, like the shortage of power, water supply, they can also be solved if the seriousness of the problem is underlined with the help of numerical data. अगर हम उस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल डाटा के साथ सपोर्ट करते हैं, तभी हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, समझी जाएगी। तो अगर मतलब हम ये चीज़ क्लियर करते हैं कि जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको एडिक्वेट सप्लाई चीज़ों की मिल रही है, फूड की, एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, क्लोथिंग की फैसिलिटी है, शेल्टर है, सभी के पास घर है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक सोशल रिफॉर्मर के लिए सोशल फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च. Science has great, statistics has great significance in the field of physical and natural sciences. It is also used for the propounding and verifying the statistical law. अगर कोई लॉ बनता है तो उसको भी स्टैटिस्टिकल टर्म्स की बेसिस पे ही आगे ले जाया जाता है, और या फिर किसी लॉ को वेरीफाई करना है कि वो कितना ट्रू है, उसमें कितनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है. Statistics is often used to formulate the standards of body temperature, pulse rate, weight, blood pressure. तो इन सब चीज़ों को भी स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाता है. सो इट हैज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च. देन वी हैव द अनदर पॉइंट इम्पॉर्टेंस इन बैंकिंग. नाउ बैंकिंग के फील्ड में भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टू एवरी बैंकर एंड बैंकिंग इंडस्ट्री. लाइक दे वर्क ऑन द डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, क्रेडिट. तो ये जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट. जो बैंक है वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को जब स्टडी करता है तो वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ करता है, तो वो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट है. इसके बाद हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. जैसे ये बैंकिंग में हेल्पफुल है वैसे ही ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी हेल्पफुल है स्टैटिस्टिक्स. लाइक वी हैव एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ. लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ निकाली जाती है. तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हर रीजन की अलग होती है. हर रीजन की अलग होने का मतलब बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स को उसके अंदर कंसिडर किया जाता है. नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एज के साथ कम होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका प्रीमियम भी चेंज होता है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? फ्रॉम द पास्ट डाटाज अवेलेबल. कि अगर हमारे पास जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कहीं की एवरेज एज इतनी है, किसी कम्युनिटी की एवरेज एज इतनी है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज. देन वी हैव importance in the field of education. This is also very important in the field of education because अब तक आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है रूल्स फॉर्मुलेट करने में, नई पॉलिसीज़ बनाने में. तो एजुकेशन में तो अपने आप इसका बहुत बड़ा रोल होगा. लाइक अगर हम फीमेल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उसमें यही कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीज़न में फ़ीमेल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आया है, तो हमें वो कैसे पता चलता है? जब हम उसके पास्ट डाटा को स्टडी करते हैं कि कौन से ईयर में वहाँ पर फीमेल एजुकेशन पर कितना काम हुआ, कितना बच्चे जो है उनको एजुकेशन मिली, कितने बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई. पीपल रेशो, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, नंबर ऑफ बुक्स इशूड बाय द लाइब्रेरी. सो देयर आर different works in which the statistics is very helpful. It is also important in economic planning. Planning is the order of the day and what without statistics planning is इनकंसीवेबल, नहीं ली जा सकती. अगर हम प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ करना पड़ेगा. सो प्लानिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो वी हैव 10 points which we studied for this importance of statistics and you have to learn all these points and this is a very important question
importance and uses of statistics. Now we have the next topic, limitations of statistics. In modern times statistics has come to occupy an important place. अब इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ चुका है कि जो statistics है that occupies a very important place, लेकिन इसके साथ साथ statistics जो है इसकी कुछ limitations भी हैं. जैसे हमारे पास इन द वर्ड ऑफ न्यूज़ होम, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च ऑफ ग्रेट वैल्यू बट बेयरिंग सीवियर लिमिटेशंस विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम. तो उनमें से हम थोड़ा सा इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी बात करेंगे. सबसे पहली तो यही हो गई कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, क्योंकि हम शुरू से यही कह रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे काम करता है. तो हमारे पास जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं, ऑनेस्टी, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, इन चीज़ों पे स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करता. विजडम, जो भी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करता. स्टैटिस्टिक्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. देन ऑल्सो इट स्टडीज़ एग्रीगेट्स ऑल्सो. ये भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. तो एग्रीगेट्स में हम ये कहते हैं कि अगर कोई सिंगल वैल्यू पता है तो वो स्टैटिस्टिक्स में कोई वैल्यू नहीं रखती, उस पर हम काम नहीं कर सकते. सो इट इज़ ओनली द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. इट डज नॉट स्टडी एनीथिंग इन पर्टिकुलर. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि जो राम की इनकम है वो 2000 रुपये महीना है, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है स्टैटिस्टिक्स में. लेकिन अगर हम राम के साथ सोहन की इनकम, मोहन की इनकम, श्याम की इनकम, 4-5 लोगों की इनकम ले आते हैं, देन वी कैन मेक कंपैरिजन आउट ऑफ दैट कि राम की कम है या ज़्यादा है. फिर हम उसमें से कुछ ना कुछ कंपैरिजन बना सकते हैं. उसके अंदर हम उनको अकॉर्डिंगली हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, इस तरह की बात भी कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें कब हो पाई? जब हमने एग्रीगेट ऑफ फैक्ट लिया. तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है कि ये एग्रीगेट पे बात करती है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर चीज़ पे बात नहीं करती. देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, नॉट द ओनली मेथड. नॉट द ओनली मेथड मीन्स जो काम हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं एक्चुअली दैट इज़ नॉट द ओनली मेथड कि वो काम सिर्फ उसी से हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ सम अदर मेथड एंड मे बी देयर इज़ सम अदर बेस्ट सॉल्यूशन ऑल्सो. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो हमें बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे पाता. सो ये इसकी एक लिमिटेशन है. देन ऑल्सो पीछे जब हमने बात की थी, होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम राम के केस में तो उसकी एज ले रहे हैं, श्याम के केस में हम उसकी हाइट ले रहे हैं, और सोहन के केस में हम उसका वेट ले रहे हैं, तो हम उस पर काम नहीं कर सकते बिकॉज वो डाटा हेट्रोजीनियस हो जाता है, अलग अलग तरह का. तो स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाटा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए, तभी हम उस डाटा को कंपेयर कर सकते हैं. और इसके अंदर एक और एग्जांपल भी आपके पास दे रखा है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है हम उसको प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ से कंपेयर नहीं कर सकते. फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को अगर हमने कंपेयर करना है तो हम आपस में कर सकते हैं. वीट को राइस से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम वीट को क्लोथ से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो डाटा होमोजीनियस नहीं होगा. तो होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन कि होमोजीनियस होगा तभी हम काम कर पाएंगे. देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. ये भी हमने थोड़ा सा पढ़ा कि हम स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी की बात भी हमने की. सो लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं दैट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. दे एक्सप्रेस टेंडेंसीज लाइक यू हैव, जैसे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लॉ होते हैं वो एब्सोल्युटली ट्रू होते हैं, हमेशा होल्ड करते हैं. लेकिन हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हैं, जैसे अगर हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया जो है वो 60,000 पर एनम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक इंडियन की इनकम पर एनम 60,000 होगी. इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू. तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज होल्ड करते हैं. देन वी हैव विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसकी. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट द कंक्लूजन्स
वर मेड लाइक इट इज़ नेसेसरी दैट द सर्कमस्टांसेस एंड कंक्लूजन्स जिसके अंदर हमने निकाली ये चीज़ें वो कैसी थी, और वो टाइम के साथ कई बार गलत भी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हम इसमें लेते हैं बिजनेस ऑफ क्लोथ एंड पेपर, तो प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द 3 ईयर्स, मान लो कि 3 साल में उसको क्या प्रॉफिट हुआ ना। पहले साल में मान लो हम लेते हैं 1000 का प्रॉफिट, दूसरे साल में हम लेते हैं 2000 का, और तीसरे साल में हम लेते हैं 3000 का। दस द एवरेज प्रॉफिट इन बोथ द बिजनेस कम्स ₹2000। आपने मान लिया कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट आया, 2000 पर एनम का प्रॉफिट आया। लेकिन इट इज़ अ रॉन्ग कंक्लूजन, क्योंकि हमारे को हर साल 2000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, और एवरेज निकलने से क्या हो गया कि तीनों साल में हर साल 2000 का पहले साल, 2000 का दूसरे साल, 2000 का तीसरे साल। दिस इज़ एन एवरेज वैल्यू। सो अगर हम इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में स्टडी करें तो हम क्या देखेंगे कि जो क्लोथ बिजनेस है दैट इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, जबकि जो पेपर बिजनेस है दैट इज़ ऑन डिक्लाइन। और मतलब इसी चीज़ को अगर हम इस तरह से समझें तो एवरेज वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें कई बार विदाउट रेफरेंस गलत रिजल्ट्स दे देती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द लिमिटेशन। तो और नेक्स्ट पॉइंट जो है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐसे लोगों से नहीं हो सकता जिनको इसकी स्टैटिस्टिकल मेथड्स की नॉलेज नहीं होती। खाली वही लोग स्टैटिस्टिक्स पे काम कर सकते हैं दोज हु नो अबाउट द मेजर ऑफ टेंडेंसीज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें और इससे आगे भी बहुत कुछ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इन सब चीज़ों की अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिक्स पे काम कर सकेंगे। सो इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट्स एंड नॉट बाय अ लेमैन जो इसके ऊपर काम कर सकता है। देन वी हैव मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल। नाउ बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम रिजल्ट्स को अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। सो इट इज़ एक क्या बोला जाता है, मतलब इट इज़ यूजुअली सेड कि आपके पास ये एक क्ले की तरह है, आप चाहो तो इस क्ले से भगवान बना दो और आप चाहो तो इस क्ले से शैतान बना दो। सो स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक गॉड और डेविल। तो आप अगर इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करो, ग्रोथ के लिए यूज़ करो तो आप ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप इसका डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करो तो आप इसका डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो जो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट, दिस गिव्स ओनली अ मीन्स नॉट अ सल्यूशन। ये हमें सिर्फ एक तरीका बताता है। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए सम स्कॉलर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो अ मीन्स एंड इट इज़ नॉट अ सल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। टू चेक द मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन इम्पार्शियली। इसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। अपने इंटरेस्ट को ध्यान में ना रखते हुए हमें स्टैटिस्टिकल सर्वे को करना चाहिए, नहीं तो अगर हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे तो हम इसके बारे में कुछ गलत कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, introduction of statistics. After that, in the next lecture we will study about the various steps जो आज हमने पढ़े, collection of data, organization of data, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन। अब हम इनको चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बताऊंगी। डाटा कलेक्शन के 2 तरीके होते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। सो वी विल स्टडी अबाउट डाटा कलेक्शन मेथड्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गुड बाय. Try to understand these concepts and get ready for the next class. Thank you.